اصا کیا شاید بن جاؤ گے تو کو تو برگر نہیں سنبھالے جا رہے ہیں جی لبیک والے آ گئے تو گھروں اسلام آباد نکلنا پہ جائے گا اجے رمضان شریف دی آمد سی اسی کیا شاید تسی کوئی 5 تو 11 تک دے فگر تے آؤ گے پیٹرول دا کوئی جناب غریباں دا سوچو گے لیکن تسی آن تو پہلے ہی دوبارہ اپنی بدماشیوں تے اتر آئے ہو اے یاد رکھنا سانو ساڈے بڑے دس کے گئے کہ یوم الفرقان یوم بدر بھی پھر جناب روزے چ ہویا اے نہ ہوئے پھر تہاڈا ساڈا جناب پیڑ بھی روزے چ ہی پوے اے گھوڑے کھولو حضور دی عزت واسطے کھولو یہ پوری دنیا تے سرداری کرنی پوری دنیا تے پاکستان جناب پوری دنیا دا امام بن جائے اور سپر پاور پاکستان بن جائے تو پھر شاہین حضور کی عزت کے لیے اڑے خطب بھی اڑے ابابیل بھی اڑے اور شاہین بھی اڑے اور ابدالی بھی اڑے اور ایٹم بم بھی باہر آئے اور غوری باہر آئے خالد ٹینک بھی آوے اور درار وہی سڑکیں وہی شیلنگ وہی لاہور ہے ظالموں کا حال کتنا آج قابل غور ہے کل تک جو تھے بنے فرعون اپنے وقت میں آج ایک مجاہد کی دعا سے ان کا بدلہ دور ہے میں یہ بتا رہا ہوں ملک پاکستان میں 1-2 دن سے جو حالات ہیں بالخصوص لاہور میں جو معاملہ ہو رہا ہے اور باتیں کی جا رہی ہیں ان کو موجود ہونا چاہیے یہ بے حسی ہے یہ قوم سے یہ قوم کے ریزرویشنز نوٹ کی جا رہی ہیں ضائع کر رہے ہیں آپ کی نالج کے لیے آپ کی نالج جو بندہ یہاں پر اسمبلی میں بیٹھ نہیں سکتا وہ مجھے یہ بتائے عوام کی خدمت کیسے کرے گا اس کو 2 منٹ یہ 4 دن ہم ہماری تجاویز سننے کے لیے سندھ کی بہتری کے لیے سندھ کی فلاح کے لیے سندھ کی بقا کے لیے جو وزیر یہاں 10 منٹ 1 گھنٹہ بیٹھ نہیں سکتا تو وہ پھر اپنے محکمے میں یہ وزارت لے کر کیوں مزے لے رہا ہے کیوں تنخواہیں لے رہا ہے کیوں گاڑیوں کے مزے لے رہا ہے کیوں پیٹرول لے رہا ہے کیوں کروڑوں لوگ پیسے لے رہا ہے جب یہ حالت ہے تو میں یہ ابھی میرے تجویز یہ ہے پہلے کچھ اور تجاویز تھی پہلی تجویز یہ ہے کہ جو وزراء یہاں موجود نہیں ہیں وہ اگر یہ چاہتے ہیں واقعیتاً سندھ کی فلاح کے لیے بقا کے لیے عوام کے لیے وہ مخلص ہیں تو وہ ابھی استعفیٰ لکھ دے بالکل ابھی یہاں سے استعفیٰ لکھ دے ہم کس کو بتائیں میرا شہر کراچی اجڑ رہا ہے میرا سندھ تباہ ہو گیا ہے ڈاکو چور دھن دھناتے گھوم رہے ہیں ماؤں کے لال اجڑ رہے ہیں سی ایم یہاں موجود نہیں ہے میں کس کو بتاؤں کہ میرا بچہ میرے گلی کا بچہ شہید ہو گیا اس کا ذمہ دار کون ہے کون سنے گا یہ اسمبلی میں یہ دیواریں سنے گی یہ چھت سنے گی کون سنے گا سننے والے یہاں موجود ہو پری بجٹ پر بات کرنے کا موقع دینے پر شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحبہ آج پھر ہم سال ہا سال کی طرح آپ کو تجاویز دینے کے لیے باتیں ہو رہی ہیں اور باتیں ہوں گی کہ آپ بجٹ میں اس کام کے لیے اس محکمے کے لیے سندھ کی بہتری کے لیے یہ کام کریں آپ مگر بات تو ایسی ہے کہ ہم یہ تجاویز کس کو دیں یہاں تو وزراء نظر ہی نہیں آ رہے مجھے اگر تعلیم کے بارے میں سندھ کی جو تعلیم ہے اس کی تباہی کے بارے میں بتانا ہو اسکولوں کے بارے میں بتانا ہو وہ اسکول جن میں بچے داخل ہوتے ہی خوف زدہ ہوتے ہیں کہ کہیں وہ ہماری پر گر نہ جائیں تو ایسے اسکولوں کی تباہی کے لیے درستگی کے لیے ہم تجاویز دیں تو کس کو دیں یہاں پہ وزیر تو نہیں ہے میں کس کو تجویز پیش کروں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر سنجیدگی ہے اور اس غیر سنجیدگی کے ماحول میں ہم آپ کو کیا بتائیں اور آپ کیا سنیں اور اس پر کیا عمل ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر محکمہ
जो सूबह सिंध में मौजूद है वो सब तबाही के अंदर मौजूद है, सब तबाह हो चुके हैं। अब हम वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की बात करें तो गटरों का क्या हाल है, सब पे वाज़ेह है कि कराची गटरिस्तान बन गया है। हम पानी की बात करें तो बूंद बूंद के लिए कराची के बासी तड़प रहे हैं, मगर गंदा पानी उनके घरों में आ जाता है, साफ पानी नजर नहीं आता। मगर ये बात मैं करूं किससे करूं? यहां तो मुझे कोई भी वजीर नजर नहीं आ रहा, मुझे तो कोई भी नजर। अब मैं अगर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के बारे में बात करूं तो वजीर नहीं है, तालीम के बारे में बात करूं तो वजीर नहीं है, फूड के बारे में बात करूं तो वजीर नहीं है। मैं क्या और कौन हूं? अच्छा, मुकेश साहब कह रहे हैं मैं हूं, तो बाकियों को छुट्टी दिलवा दें, बाकियों को रुखसत दिला दें, या बाकियों को कहें कि इस्तीफा लिख दे और चले जाएं। ये नाअहली और उस पर डट जाना, ये एक अजीब सी बात आ गई। तो मेरे ख्याल में बेहतर यही है मुफ्ती साहब मौजूद नहीं, उनको मौजूद होना चाहिए। ये बेहिस्सी है, ये कौम से, ये कौम आपकी रिजर्वेशंस नोट की जा रही है, कर रहे हैं, आपकी नॉलेज के लिए, आपकी नॉलेज जो बंदा यहाँ पर असेंबली में बैठ नहीं सकता वो मुझे ये बताए वो आवाम की खिदमत कैसे करेगा? उसको 2 मिनट, ये 4 दिन हम हमारी तजावीज सुनने के लिए, सिंध की बेहतरी के लिए, सिंध की फलाह के लिए, सिंध की बका के लिए, जो वजीर यहाँ 10 मिनट 1 घंटा बैठ नहीं सकता, तो वो फिर अपने महकमे में ये वजारत लेकर क्यों मजे ले रहा है, क्यों तनख्वाहें ले रहा है, क्यों गाड़ियों के मजे ले रहा है, क्यों पेट्रोल ले रहा है, क्यों करोड़ों लोग पैसे ले रहा है? जब ये हालत है तो मैं ये अभी मेरे तजवीज ये है, पहले कुछ और तजावीज थी। पहली तजवीज ये है कि जो वज़रा यहाँ मौजूद नहीं है वो अगर ये चाहते हैं वाकईतन सिंध की फलाह के लिए, बका के लिए, अवाम के लिए वो मुखलिस हैं, तो वो अभी इस्तीफा लिख दे, बिल्कुल अभी यहां से इस्तीफा लिख दे। हम किसको बताएं? मेरा शहर कराची उजड़ रहा है, मेरा सिंध तबाह हो गया है, डाकू चोर धन धनाते घूम रहे हैं, माओ के लाल उजड़ रहे हैं, सीएम यहां मौजूद नहीं है। मैं किसको बताऊं कि मेरा बच्चा, मेरे गली का बच्चा शहीद हो गया? उसका जिम्मेदार कौन है? कौन सुनेगा? ये असेंबली में ये दीवारें सुनेगी, ये छत सुनेगी? कौन सुनेगा? सुनने वाले यहां मौजूद हो। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जब हमारे जवानों को शहीद किया गया, हमारा खून बहाया गया, हजारों लोगों को जख्मी किया गया, कोई आवाज नहीं आई। मैं मीडिया से भी बात कर रहा हूं, किसी चैनल ने नहीं दिखाया। आज छोटी से छोटी बात को दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। क्या हम पाकिस्तानी नहीं थे? हमारे 50 से ज्यादा लोग जो शहीद हुए, क्या वो पाकिस्तानी नहीं थे? हम पर जुल्म क्यों हुआ? और उसी पादाश में जिन लोगों ने जुल्म किया, आज वो अल्लाह ताला की गिरफ्त में मौजूद है। आज वो इसी गिरफ्त में मौजूद है कि इस्लाम का जिन्होंने रास्ता रोका, दीन का जिन्होंने रास्ता रोका, दीन वालों पर, इस्लाम वालों पर, प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वालों पर, जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इज्जत के लिए, नामूस के लिए रोडों पर आए, तो उस वक्त डायरेक्ट हम पर गोलियां चलाई गई। आज फिर मत रोएं, जो किया वो भोगे, जो हुआ वो होगा और होता रहेगा। और ये हमने पहले भी बता दिया, ये कुर्सियां, ये निशिस्तें, ये ओहदे और ये ताकत हमेशा के लिए नहीं है। हाँ, जब नीचे उतरोगे तो फिर आपको भी भुगतना पड़ेगा। हमेशा अल्लाह रब्बुल इज्जत की ही जात बाकी है और इज्जत भी उसी की है। बस बात यही है कि आज जो प्री बजट में जो मामला जो मैं सुबह से मैं देख रहा हूं, गैर संजीदगी है, यहां जो माहौल इस तरह का है, इससे सूबे सिंध की न बका होगी न फलाह होगी। बस ये एक सिस्टम पूरा किया जा रहा है
एक पीरियड गुजारा जा रहा है, वक्त को गुजारा जा रहा है, इसमें अगर आप समझते हैं कि वाकईतन आप मुखलिस है तो जो तजावीज़ मैं दे रहा हूं या अपोजिशन जमातों से जो तजावीज़ आ रही है तो आप बजट में ऐलान कीजिएगा कि 200 तजावीज़ इन्होंने दिए और हमने कबूल किए, हमने उनके इतनी स्कीमें ली, तो फिर तो ठीक रहा ये सेशन चलाना। और अगर ऐसा नहीं है तो सिवाय पैसे के ज़िया के कुछ भी नहीं है। उनका पैसा ज़िया किया जा रहा है, यहां पर कोई नहीं सुनता। मैं 5 साल से रो रो कर यहां आपको बातें बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि लोग कितने परेशान हैं, उनके पास पानी नहीं है, उनके पास घर नहीं है, उनके पास महंगाई कितनी है और हालात कितने, सीवरेज का हाल क्या है, रोडों का हाल क्या है, ये मामला क्या है, लोगों के पास पैसे नहीं है कि वो दवाई कहां से ले, वो कितने परेशान है। तो मुझे ये बताया जाए तो फिर क्या फायदा हमारे तजावीज देने का। हम 5 साल तो तजावीज देते रहे। मुझे एक बात बताइएगा, क्या एक स्कीम भी मुफ्ती कासिम फखरी का रखा गया? बोलिएगा, नहीं रखा गया। तो इसका मतलब यह है कि आइंदा भी नहीं रखा जाएगा। तो फिर क्या फायदा है पैसा ज़िया करने का। और दूसरी बात यह है कि हमें 5 साल के अंदर आपने क्या बजट दिया है। एक तो आपके सारे महकमे नाअहल, आपके वज़रा नाअहल, वो काम करते नहीं, पूरा सिंध उजड़ गया। और आप हमारे सवाबदीद पर हमें भी बजट नहीं देते हैं आप, कि आप काम नहीं कर सकते तो हमें बताएं, हमें बजट दिया जाए, हम दुरुस्तगी ला के दिखाएंगे आपको। 5 साल में आपने किसी भी अपोजिशन जमात में से किसी को आपने कुछ भी नहीं दिया है। और हम ये बात कह रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये मुल्क, ये सूबे सिंध को दुरुस्त करना है तो फिर संजीदगी लानी होगी। और फिर मैं इस बिना पर मैं आपको मजीद तजावीज़ इसलिए नहीं दे रहा कि आप बहुत नाअहल हैं और आप नाअहली में यहां तक पहुंच गए हैं कि आपको तजवीज़ देना ही बेकार है। आप क्या तजवीज़ लेंगे? जो मैंने तजवीज़ दे दिया उसी पर अमल करें, इस्तीफे वाले पर। बात यह है कि जुल्म में डूबी वो सदा याद आई, वो इश्क वालों की अदा याद आई, देख के जालिमों का मुकाफाते अमल, एक मर्दे कलंदर खादिम हुसैन रिजवी की दुआ याद आई। असा क्या शायद बन जाओगे वो ਤੁਹਾਡੇ को तो बर्गर नहीं संभाले जा रहे हैं। जे लबैक वाले आ गए तो ਤੁਹਾਨੂੰ घरों इस्लामाबादों निकलना पै जाएगा। अजे रमजान शरीफ की आमद सी, असी क्या शायद तुसी कोई 5 तो 11 तक दे फिगर ते आओगे, पेट्रोल का कोई जनाब गरीबां दा सोचोगे, लेकिन तुसी आन तो पहले ही दोबारा अपनी बदमाशियत ते उतर आयो। ए याद रखना, सानू साडे बड़े दस के गए कि यौमुल फुरकान यौम बदर भी फिर जनाब रोजे च होया। ए ना होवे फिर तुहाडा साडा जनाब पेड़ भी रोजे च ही पवे।